Good morning to you all. Am I audible? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. So we are going through the questions which are asked in GATE, and till now we have approximately solved 30 to 35 questions, and in analog communication we have approximately 80 questions. Okay, so let us wait for 1 to 2 minutes for other participants if anyone else wants to join. Okay, let us start that. Let me share the whiteboard. Okay, so in the last class, we have seen these questions. Okay, so we have gone through all these questions in the last class. Are you able to see the questions? Are you able to see the question? Yes, sir. Yes, sir. Sorry. Okay. So the next question what we have is this. It is related to superelectronic receiver and this is a 2-mark question asked in 2003. So let us see that. A superheterodyne receiver is to operate in the frequency range 550 kilohertz to 1650 kilohertz with the intermediate frequency of 450 kilohertz. Okay. Let R is equal to C max by C min. Denote the required capacitance ratio of the local oscillator. Then, and I is the image frequency. So if the receiver is tuned to 700 kilohertz, okay, if the receiver is tuned to 700 kilohertz, then what is the solution? Then then we have to find out the value of R and the value of I. So R is the ratio which is given here and I is the image frequency. So can anybody tell me which should be the answer? Please, anybody? Anybody please tell me the answer? Because we have to calculate the value of R and the value of I. Yes. Anybody? So what is the value of image frequency? How we can calculate the image frequency? We have already done 2 to 3 questions regarding related to image frequency. Then why any one of you is not telling the answer? So am I audible? Yes, sir.
then why any one of you is not telling the answer? Because we have already solved 2 to 3 questions related to image frequency. So can anybody tell me the answer? So I've already discussed this question, means the question related to image frequency. So what is image frequency? We already have done these things. It is, image frequency is nothing but what? IF plus 2 सर BSD नंबर होगा बट कंफ्यूज है सर। ओके, तो आप लोग कुछ तो बोलोगे ना, कुछ बोलोगे तो मुझे अंदाजा लगेगा कि आप लोग सुन पा रहे हो और नहीं सुन पा रहे हो। आप लोग एकदम से चुप लगा के बैठे हो। कुछ तो बोलना पड़ेगा, हाँ या ना आता है या नहीं आता है, कौन सा आंसर आ रहा है। तो ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है, आई इमेज फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हम लोग ऑलरेडी क्या जानते हैं, FS + 2FI। FS पता है क्या? FS पता है? व्हाट इज FS? इस जो इमेज फ्रीक्वेंसी का जो ये फॉर्मूला है, FS इज इक्वल टू सॉरी इमेज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू FS + 2FI, इसमें FS क्या है, कोई जानते हो? FS is the signal frequency. And what is FI? Intermediate frequency. So whether in the question signal frequency is given or not. So what is written here? If the receiver is tuned to 700 kilohertz, इसका क्या मतलब होता है? In the question here it is written as the receiver is tuned to 700 kilohertz. मतलब receiver कहाँ है? यहाँ रिसीवर लगा है और इसके बाद हमारा सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर है, और रिसीवर पर जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट सिग्नल वी हैव देयर हियर इट इज अ प्री सेलेक्टर। प्री सेलेक्टर के बाद क्या है? RF स्टेज है। RF स्टेज के बाद क्या है? मिक्सर है। मिक्सर के साथ क्या कनेक्टेड है? लोकल ऑसिलेटर कनेक्टेड है। और यहाँ हमें यहाँ मिल रहा है, इसके बाद क्या मिल रहा है? इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, then we have detector, then we have amplifier. yes, so इस तरह से हमारे पास ये ब्लॉक्स है। so जो भी सिग्नल यहाँ आ रहा है that is the incoming signal. so अभी यहाँ पर if the receiver is tuned to 700 kilohertz यहाँ दिया हुआ है, okay, receiver is tuned to 700 kilohertz, मतलब यहाँ जो भी सिग्नल आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्यूनिंग किया हुआ है क्या कि 700 किलोहर्ट्ज के सिग्नल को ये रिसीव करेगा। ओके, तो मतलब ये सिग्नल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है FS, दैट इज 700 किलोहर्ट्ज। तो FS दिया हुआ है 700 किलोहर्ट्ज। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FI, द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी? आई थिंक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज आल्सो गिवन। Yes, sir. Intermediate frequency is 450 kilohertz. So 450 into 2 because it is 2FI. कितना हो गया ये? 700 plus 900. 9. कितना हो गया ये? 1600 किलोहर्ट्ज। 1600. क्वेश्चन में क्या है? 1600 आप देख रहे हो यहाँ पे दो ऑप्शंस में है। ओके, दो ऑप्शंस में 1600 है। तो अब ये देखना होगा कि कौन सा होगा, और ये A होगा या C होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो हमें एक और रिलेशन, हम जब पढ़ रहे थे सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, तब हमने देखा था कि फॉर दिस रेशियो दैट इज द मैक्सिमम टू मिनिमम कैपेसिटेंस रेशियो is equal to nothing but the frequency ratio. That is frequency ratio मतलब F max by F mean. अभी F max है क्या? F max क्या है? The square of F max by F mean. We have already seen that. Okay, so here
just wait for a 1 minute. Okay, so here what we can see that this ratio C max by C min capacitance ratio is equal to, or it is proportional to the square of the maximum frequency to the minimum frequency. अभी maximum frequency होता क्या है, ये maximum frequency कौन सा frequency है, ये tuned frequency है जो कि after mixer मिलता है हमें. ओके, यहाँ जो ये सिग्नल हमें मिल रहा है यहीं पर f max या f min मिलता है, और ये f max और f min कौन सा रेंज है, based upon this range. So whatever the range is given here, यहाँ पर जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज दिया हुआ है 550 किलोहर्ट्ज टू 1650 किलोहर्ट्ज, यहाँ पर ये V max है और ये V min है, लेकिन सॉरी ये मैक्सिमम वैल्यू है रेंज का और इस रेंज का मिनिमम वैल्यू ये है. तो लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होगा, दिस लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी विल बी व्हाट फ्रीक्वेंसी, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा. तो हम क्या जानते हैं कि अगर यहाँ पर ये जो हमारा सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर है, इस रिसीवर में अगर ओके जस्ट वेट फॉर मिनट, यस आई एम डिलीटिंग दिस वन. सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ आ रहा है, बेस्ड ऑन दैट ये लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है जो कि इस इनकमिंग फ्रीक्वेंसी से 455 किलोहर्ट्ज या 450 किलोहर्ट्ज, जैसे यहाँ पर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 450 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है. सो जो लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कौन सा फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, जो भी फ्रीक्वेंसी इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है उसके साथ उससे 450 यानी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करता है कौन, लोकल ऑसिलेटर. सो दिस एफ मैक्स इज नथिंग बट द अपर रेंज दैट इज 1650 plus 450. Okay, and the minimum range is the minimum value of the frequency range, that is 550 plus 450. Okay, the square of this value. So we have seen this thing when we are going through that why the local oscillator frequency is higher. Okay, so यहाँ पर हमने ये चीज देखा था कि लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी ज्यादा क्यों होना चाहिए. तो ये C max by C min का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 10 से नीचे होना चाहिए. ओके, सो हम देखते हैं यहाँ पर ये कितना वैल्यू आ रहा है. सो कैन एनीबॉडी कैलकुलेट दिस, कैन एनीबॉडी कैलकुलेट दिस. सर 441 divided by 100. सो 441 कैसे आएगा सर स्क्वायर कर दिए, मैं स्क्वायर कर दी. अच्छा आपने उससे पहले. ओके 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 ओके, यस सर. उससे पहले जो वैल्यू आ रहा है 2100 divided by 1000. 2100 आ रहा है और ये नीचे कितना आ रहा है, ये हो गया 1000. तो काफी आसान हो गया सॉल्यूशन, कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर हमारे पास आ गया क्या, 21 का ए ऑप्शन होगा स्क्वायर और नीचे 10 का स्क्वायर, 2.1 का स्क्वायर. सो इट इज 4.41. So this will be the appropriate answer. Okay, so we have discussed all these things while we are studying the super heterodyne receiver in theoretical part. Okay, so please go through that videos if you want, otherwise I am repeating here also. So R is nothing, R is the value. What is this value? So is the connection okay? So R is equal to C max by C min is equal to F max by X min, F min square, where F max value is what? F max is the value of the maximum frequency after adding the intermediate frequency. Okay, और F minimum जो है, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये लोकल ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी रेंज है. मतलब लोकल ऑसिलेटर ये सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा अगर हमारे पास इस रेंज का फ्रीक्वेंसी है. ओके, इनकमिंग सिग्नल का. ठीक है. सो कैन आई गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर. ओके,
Are you able to see the question? Are you able to see the question? Yes, sir. Okay. So an AM receiver, an AM signal is detected using an envelope detector. Okay. The carrier frequency and modulating signal frequency are 1 megahertz. So we have carrier frequency and the modulating frequency, both are 1 megahertz and 2 kilohertz respectively. So appropriate value for the time constant of the envelope detector is, so yes, we have already, I have discussed this thing, that there are questions regarding this topic or regarding this formula. So the time constant RC should lie between 1 by FC to 1 by FM. Okay, so this is the range. So according to this value, can anybody tell me what should be the answer? You have to remember this formula. This is a very important formula, and in number of competitions this question is asked. So 1 by FC is equal, should be, RC should lie between 1 by FC to 1 by FM. Okay. So now, please tell me what is the range. So RC should lie between what values? So can you tell me what is the value of 1 by FC? What is the value of 1 by FC? So according to question, do we know the value of FC and FM? Am I audible? Yes, sir. FC 1 megahertz and FM 2 kilohertz. Yes. So according to question, FC is equal to 1 megahertz and FM is equal to 2 kilohertz. So please tell me the value of 1 by FC. Please tell me the value of 1 by FC. 10 to the power minus 6. So 1 by FC is 1 by mega means 10 to the power 6. So 1 into 10 to the power 6. So 10 to the power minus 6. Sorry, नहीं अभी नीचे मैंने ये 10 to the power 6 लिखा है. So अभी ये हो जाएगा 10 to the power 6 minus 6 क्या? Unit? What is the unit? Hertz. Hertz. नहीं इनवर्स होगा. तो हर्ट्ज का इनवर्स को क्या कहते हैं? हर्ट्ज के इनवर्स को क्या कहते हैं? टाइम. टाइम. T is equal to 1 by F. हाँ, टाइम का है. तो यहाँ पर यूनिट क्या होगा? इतना क्या? सेकंड. सेकंड. अभी इसे माइक्रो सेकंड में बोलेंगे तो कितना माइक्रो सेकंड होगा? कितना माइक्रो सेकंड होगा? 1 माइक्रो. Yes, it is 1 microsecond. Now FM. So FM is 2 kilohertz. So what will be the value of 1 by FM? One by FM is equal to 0.5 Sir, 5 into millisecond. So it is 2 kilohertz. यानी कि 2 kilohertz मतलब 2 into 10 to the power 3. तो ये वैल्यू कितना आ गया? 0.5 कितना आ गया? millisecond. ये वैल्यू आ गया कहाँ गया? ओके, सो 1/2 मतलब हो गया 0.5 into 10 to the power minus 3 इतना सेकंड मतलब कितना हो गया? 0.5 क्या? मिली सेकेंड, isn't it? लेकिन मिली सेकेंड में यहाँ हमें कुछ नहीं दिख रहा है ऑप्शन में. हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें मिली सेकेंड कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन माइक्रो सेकेंड दिख रहा है 5 के रेंज में. तो अगर मिली सेकेंड को माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो क्या आएगा? 500 microseconds. सो हमें क्या करना है? तो
यूनिट का कन्वर्शन बहुत ही जरूरी है आना, क्योंकि ऑप्शंस में यूनिट्स जरूरी नहीं है कि आपके जो यूनिट आ रहे हैं उसी के रेंज में आए। तो हमें क्या करना है, अभी से माइक्रो में अगर करना है, मिली को माइक्रो में करना है, मिली को माइक्रो में करना है, मतलब अभी हमारे पास कितना है, यानी कि इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 500 हो जाएगा। तो 1000 यानी कि 0.5 बाई 1000 इंटू 1000 मिली सेकेंड। ओके, सो ये 10 पहले मिली था, यानी कि 10⁻³ था, 3 और 0 नीचे आ गया, तो ऊपर हो गया 500 इंटू 10⁻³ मिली सेकेंड, मतलब हो गया 500 इंटू, सॉरी इसको डायरेक्ट माइक्रो सेकेंड लिख दे। सो 500 माइक्रो सेकेंड। ओके, सो 500 माइक्रो सेकेंड आ रहा है क्या? ओके, सो लेट मी राइट इट हियर। तो आरसी का जो वैल्यू है उसका रेंज क्या आ रहा है? 1/fc का वैल्यू कितना आया था? 1 माइक्रो सेकेंड, और 1/fm का वैल्यू कितना आया है? 500 माइक्रो सेकेंड। ओके, so we know this range, the value of RC should lie between 1 microsecond to 500 microsecond. So what should be the answer? Should it be 500 microsecond or 1 microsecond? Please answer this question. So you know the value of RC, that it is lying between 1 microsecond to 500 microsecond. तो 1 microsecond भी नहीं होगा, 500 microsecond भी नहीं होगा, इन दोनों के बीच का वैल्यू कौन सा है? 20 माइक्रोसेकंड। 0.2 माइक्रोसेकंड। 20 माइक्रोसेकंड। यस, 0.2 माइक्रोसेकंड कहाँ लाई कर रहा है? ये 1 माइक्रोसेकंड से भी छोटा है, सो 20 माइक्रोसेकंड विल बी दी एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, क्योंकि ये 1 माइक्रोसेकंड से 500 माइक्रोसेकंड के बीच लाई कर रहा है, और आरसी का वैल्यू इसी रेंज के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है ना? सो दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में गलती कहाँ होगी कि आपने 1/fc निकाला, देखा अरे ये तो 1 माइक्रोसेकंड आ गया, और डायरेक्टली आप 1 माइक्रोसेकंड का आंसर मार कर आ गए। ओके, सो ध्यान देना है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर देना है, ठीक है? So can we move to the next question? Yes, sir. Okay. So that was 1 mark question. I think this was asked in 2004. Okay. So here, an AM signal and a narrow band FM signal with identical carriers. Okay. तो हमारे पास एक AM सिग्नल है और एक नैरो बैंड FM सिग्नल है, दो सिग्नल्स है हमारे पास। क्या इस पिक्चर के साइज को मैं छोटा कर सकता हूँ? Is there any option? Yes. No. There is no any option. Okay. So we have a AM signal, a narrow band FM signal with identical carriers and modulating signal and modulation indices of 0.1. मतलब एक AM सिग्नल है और एक FM सिग्नल है, दोनों ही में कैरियर सिग्नल सेम है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सेम है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स सेम है, आर एडेड टुगेदर, दोनों सिग्नल को ऐड किया गया। द रिजल्टेंट सिग्नल कैन बी क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड बाय। Okay, so it is a good question. So this in this question, if you know the so do you understand the question, that what is the question is saying? I think I am not audible. Because no सर one is आवाज आपका replying. आना बंद हो जा रहा है बीच बीच में, अभी आया सर आवाज।
Okay, so I have what I have asked. I have asked that are you able to understand the question? What the question is saying? Am I audible? Yes, sir. Okay. So मैं क्या कह रहा हूँ कि we have two signals, one AM signal and a narrowband FM signal. Okay, we have an AM signal and a narrowband FM signal और इन दोनों ही सिग्नल में कैरियर फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, दोनों के लिए। और दोनों के लिए क्या सेम है? दोनों के लिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी सेम है, मतलब मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी भी दोनों के लिए सेम है और मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी दोनों के लिए सेम है, AM और FM दोनों ही के लिए। और ये दिया हुआ है 0.1। ओके, आर एडेड टुगेदर, इन दोनों सिग्नल्स को ऐड किया गया, मतलब AM प्लस FM किया गया, तो जो सिग्नल मिलेगा वो कौन सा सिग्नल होगा अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? नॉर्मल फॉर्म पता होना चाहिए AM का और FM का, देन यू कैन कंपेयर both of them. Okay, so let us see that. So if anybody gone through the question in a right way, then they can solve it easily. Okay, so let us assume that MT, the message signal, is like AM cos of 2 pi FMT. Okay, let CT, the carrier, is equal to AC cos of 2 pi FCT. Okay, ये दोनों सिग्नल्स हम पास दिए हुए हैं और ये क्या कहा जा रहा है कि ये जो मैसेज सिग्नल है और ये जो कैरियर सिग्नल है, AM और FM दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है। तो यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैरियर का AC है और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का AM है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी FM है और कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी FC है, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू और व्हाट इज द इक्वेशन फॉर FM सिग्नल? AM के लिए पहले देख लें। तो AM सिग्नल के लिए इक्वेशन क्या होता है? डू वी नो? यस, वी नो दैट द AC cos of 2 pi FCT, ओके, प्लस, तो हमारे पास जो AM सिग्नल होता है उसमें क्या होता है? उसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ऑलरेडी वी नो दैट। एक कैरियर होता है, एक अपर साइड बैंड होता है और एक लोअर साइड बैंड होता है। ओके, MAC by 2 cos of 2 pi FC plus FMT, और क्या होता है दूसरा कंपोनेंट? प्लस MAC by 2 cos of 2 pi FC minus FMT। ओके, ये जो पार्ट है इसमें ये अपर साइड बैंड वाला पार्ट है, ये लोअर साइड बैंड वाला पार्ट है और ये क्या है? कैरियर वाला पार्ट है, ठीक है। इन द सेम वे वी हैव द इक्वेशन फॉर FM. So what is the equation of FM? Do we know this? Yes, we have already seen all these things in the class, that we have AC cos of 2 pi FCT minus ACM sin 2 pi FCT into sin 2 pi FMT. So we have already elaborated this equation in theoretical class. Okay, so what we can do here,
अब हम ये देख सकते हैं कि AM का हमने ये इक्वेशन देखा था और नैरो बैंड FM के लिए हमने ये इक्वेशन देखा था। तो ये क्या दोनों इक्वेशन रिजेंबल, मतलब एक दूसरे से हम कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हमें अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड क्लियरली दिख रहा है, बट यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर दिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो साइन 2 पाई FCT इंटू साइन 2 पाई FMT है, इसे हम अगर साइन A इंटू साइन B के फॉर्मूला में अगर ब्रेक कर दें, then we will have this type of components. Okay, so let us break that. So we will have AC cos of 2 pi FCT minus, okay, so यहाँ पर 2 sin A इंटू साइन B का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में भी 2 आएगा और यहाँ भी एक 2 आएगा। सो 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है, we already know that it can be written as cos A minus B minus cos A plus B. Okay, Yes, sir. so we have AC M by 2. Okay, let me change the color because it clearly दिख नहीं रहा है. Okay, AC M by 2, 2 sin A into sin B is equal to cos, oh ये तो और नहीं दिख रहा है, cos A minus B, cos A minus B करेंगे तो क्या आएगा, 2 pi FC minus FMT minus cos FC plus cos के बाद यहाँ 2 pi भी होगा, cos 2 pi FC plus FMT. Okay, let us break the brackets. AC cos 2 pi FCT पहला तो ये है, माइनस यहाँ पर क्या आएगा, AC M by 2 cos of 2 pi FC plus FMT प्लस बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है, सो इट विल बिकम प्लस AC M by 2 cos of 2 pi FC plus FMT. तो अब हम देखें कौन कौन से इक्वेशन में, ये AM के इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि AM के इक्वेशन में ये टर्म कॉमन है दोनों में, देखो FC और FM। तो हमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि द रिजल्टेंट ओके आर एडेड टुगेदर, सो दीज टू सिग्नल्स आर एडेड टुगेदर। तो अब इन दोनों सिग्नल्स को हम ऐड करें, देखें ऐड करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, दैट यहाँ माइनस होना चाहिए क्योंकि वी हैव FC माइनस FMT। आप लोग आई थिंक देख नहीं रहे हो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया था, आपने किसी ने बोला नहीं कि यहाँ माइनस होगा। तो वी हैव AC cos of 2 pi FCT, हियर आल्सो वी हैव AC cos of 2 pi FCT। इन दोनों सिग्नल्स को हम ऐड करेंगे, मतलब नाउ वी आर डूइंग SAMT प्लस SFMT अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, सो दिस आर सेम, मीन्स अगर दोनों को ऐड करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2AC cos of 2 pi FCT प्लस, देखें क्या आता है, ये हो गया। नेक्स्ट इज AM by 2 cos 2 pi FC plus FMT। तो FC plus FM वाला पार्ट कहाँ है, यहाँ पर है, ये देखें यहाँ पर। तो AC M by 2 cos 2 pi FCT, तो यहाँ पर, यहाँ भी, इसमें भी प्लस साइन है और यहाँ पर भी प्लस साइन है। सो दिस विल गेट एडेड टुगेदर, ऐड करेंगे तो व्हाट वी विल हैव 2 ACM, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल हैव दिस अपर साइड बैंड वाला पार्ट मिलेगा, FC प्लस FM वाला पार्ट मिलेगा, और FC माइनस FM वाला जो पोर्शन है वहां पर देख रहे हैं क्या, यहाँ पर एक माइनस प्लस साइन है और यहाँ माइनस साइन है। सो दीज टू टर्मिनल्स और दीज टू कंपोनेंट्स विल गेट कैंसल्ड, क्योंकि अगर ऐड करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, सो दीज विल गेट कैंसिल। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है यहाँ पर कैरियर वाला पार्ट, और दूसरा क्या मिल रहा है, हमें अपर साइड बैंड वाला पार्ट मिल रहा है, अपर साइड बैंड वाला पार्ट मिल रहा है। सो नाउ what we have first option is broadband FM, second one is SSB with carrier, third is DSB with DSB-SC, and fourth one is the SSB without carrier. So what should be the answer?
हमने जब AM और सर FM बी, ऑप्शन बी। यस, हमने जो AM और FM वाले सिग्नल को ऐड किया, तो ऐड करने के बाद हम देख रहे हैं कि कैरियर वाला पार्ट बच रहा है और अपर साइड बैंड वाला पार्ट बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि वी हैव ओनली वन साइड बैंड एंड द कैरियर पार्ट, मतलब हमें सिंगल साइड बैंड विथ कैरियर वाला सिग्नल मिल रहा है। ओके, सो दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, सो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं था, सिर्फ हमें जानना था कि AM का जो जनरल फॉर्मेट है वो क्या होता है। अगर हम वो जानते हैं then we can easily answer this question. AM का और FM का, यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली यहाँ मेंशन था that we have AM signal and a narrow band FM signal, और narrow band FM signal के लिए हमने ये इक्वेशन डिराइव किया था। ठीक है, तो if we know these equations, the basic equations, then we can easily find out the answer. Okay, so can we move to the next question? Am I audible? यस सर। यस सर, बट बीच बीच में कट जा रहा है आपका वॉइस। ओके, तो हो सकता है थोड़ा नेटवर्क इशू होगा। ओके, लेट मी चेंज द पोजीशन ऑफ माय मोबाइल फोन। आई थिंक इन दैट वे द सिग्नल विल बी बेटर। सो एम आई ऑडिबल क्लियरली? Am I audible? यस यस सर। सर। Okay, so I am moving to the next question. यस सर। So this was a 1 mark question. Actually, the concept was very simple, and so based on that, it was only 1 mark. Okay, now बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, but we have to see that. Okay, so what is the question? 100 megahertz carrier, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे। 100 में, ओके, 1 मिनट है, आप लोग फिर से रिज्वाइन करोगे। ठीक है, क्लास अगर ओवर होता है तो आप लोग फिर से रिज्वाइन करोगे। So we have a 1 megahertz carrier of 1 volt amplitude and a 1 megahertz modulating signal. तो कैरियर सिग्नल है 100 मेगाहर्ट्ज का, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है 1 मेगाहर्ट्ज का, दोनों ही का वोल्टेज 1 वोल्ट, एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट है, और फेड टू अ बैलेंस मॉड्यूलेटर। तो ये दोनों सिग्नल को एक बैलेंस मॉड्यूलेटर में फीड किया गया। ठीक है, कैरियर सिग्नल को मतलब CT को और मैसेज सिग्नल को MT को। ओके, बैलेंस मॉड्यूलेटर में फीड किया गया। दिस इज द बैलेंस मॉड्यूलेटर। Now the output of the modulator is passed through an ideal high pass filter. तो ये जो भी आउटपुट आया इसे एक हाई पास फिल्टर से पास किया गया।